Picture. Yes, sir. Kindly read the scenario and identify the picture and tell me what are the positive findings. Sir, it's a 55-year-old female with history of intermittent jaundice. Right upper quadrant pain and fever is admitted through ER with suspected obstructive jaundice. Hmm. Okay. Read the means identify the picture that what this picture is and Uh, what are the findings you can appreciate. Sir, this is intravenous cholangiogram showing intrahepatic, visibly intrahepatic ducts are visible, and there is a um, contrast. There could be a shadow is seen, which could probably be a stone at the end of the probably CBD. Okay. Anybody else? Dr. Raja, can you please comment on this picture and rectify Dr. Faryal her mistakes? Yes, sir. This pictogram showing ERCP, Hmm. uh, in which a dilated intra and extra hepatic biliary channel with the distal filling defect, most probably due to stone. Very right, and in the perfect manner you have described the ERCP finding. Dr. Faryal, अगर ये if this would be the T tube, then you could say intraoperative cholangiogram Yes, sir. and sorry इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते और उसके लिए जैसे लेप्रोस्कोपिक सिस्टिक डक्ट को उन्होंने ले ओपन किया होता है उसके बाद वो डाई लगाते हैं और उसमें ये आर्टिफैक्ट आपको नजर नहीं आता दिस आर्टिफैक्ट इज कोलिडोकोस्कोप और अपर जीआई एंडोस्कोप ओके so this is the big sign that you identify this is picture of ERC. Are you Right, sir. getting my point? Yes, sir. And don't say shadow, say filling defect in the distal part of CBD with proximal dilatation, which includes extra biliary as well as I can appreciate intrahepatic biliary dilatation. This is again another ERCP with normal findings. And again you can see here is the artifact. क्योंकि ये हाई यील्ड पिक्चर है और ऐसी पिक्चर आ सकती है और इन 2022 सेम स्टेशन वाज देयर इन द पार्ट 2 टॉक्स. Okay, Dr. Faryal, can you please tell me how will you differentiate the CBD stone from malignant structure on ERCP? Sir, on the basis of this, so sorry, I won't be able to answer that. Okay, Dr. Zulfikar is there? No? Dr. Malik Musaddiq, can you please tell me? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। कहाँ पे हैं, कौन से क्वेश्चन पे? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि ईआरसीपी पे आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इज इट स्टोन और इज इट स्ट्रक्चर मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर. ईआरसीपी पे यस. ईआरसीपी के बाद स्टोन के जो है बायलैटरली, नहीं सॉरी, स्टोन के एयर बबल के जो होता है बायलैटरल फ्लो होता है बाइल का, और उसका शेडो जेट ब्लैक होता है एयर का, और एयर जो है एंटी ग्रेविटी ऊपर मूव करती है।
No, I am not bile asking pneumobilia. I am asking how will you distinguish stone from malignant structure? अच्छा मैलिग्नेंट स्टिक। अच्छा मैलिग्नेंट स्टोन में स्टोन कैसे उसके लिए सॉरी इरेगुलरिटी मिलेगी इन द स्ट्रक्चर के अंदर। वेरी कोई राइट, इरेग्युलर टेपरिंग होगी, सही है ना। और अगर बिनाइन स्ट्रक्चर है तो इरेग्युलर टेपरिंग नहीं होगी, स्मूथ टेपरिंग होगी, सही है। और अगर स्टोन है तो उसमें आपको मेनिस्कस साइन पॉजिटिव मिलेगी, सही है। मेनिस्कस साइन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये कपिंग है ना, this cupping is called meniscus sign. So that will be positive in CBD stone. और अगर इसी जगह मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर होगा तो देयर विल बी दिस टाइप ऑफ irregularity and then tapering will be there. Am I clear? Yes, sir. Okay. So what is your means diagnosis in this case? Uh, Choledocholithiasis, very simple. Choledocholithiasis. Yes, and you see if in the scenario I have mentioned intermittent jaundice, right upper quadrant pain and fever. So whenever there comes the intermittent jaundice, you will think few differentials and amongst that आप बता सकते हैं intermittent jaundice के differential? यस सर, इसमें फीवर के साथ भी है तो हम कोलिंजाइटिस भी रख सकते हैं इसमें, एक्यूट कोलिंजाइटिस। और साथ और इसके साथ पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा हम डिफरेंशियल पे रख सकते हैं, क्योंकि डिस्टल सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है और साथ में इंटरमीडिएट जॉन्डिस भी है। Why और there is लाइक एम्पुलरी कार्सिनोमा सर, एम्पुलरी। why there is intermittent jaundice in periampullary carcinoma? Can you सर इन tell me what is the exact mechanism? इन एम्पुलरी कार्सिनोमा देयर मे बी इंटरमीडिएट जॉन्डिस। पेरी एम्पुलरी तो सर ब्रॉड ट्रम हो जाता है, उसमें चारों Okay, आ जाते yeah, हैं। ampullary is part of periampullary. यस First, सर। define me what is periampullary carcinoma. Sir, periampullary carcinoma is a carcinoma around the in the area in which occur four carcinoma उसमें होते हैं सर, जिसमें डिस्टल सीबीडी का। No. Answer me in a Then it is the professional way. carcinoma which occurs 2 centimeters in the ampulla of the ureter. So ampulla Yes, of the these two vessel parts are growth coming from which around periampullary. any growth which arise around the 2 centimeter rim of ampulla of water, which is called periampullary carcinoma, which can be the duodenal growth, can be ampullary growth, can be distal CBD growth, and can be the part of head of pancreas. तो हेड राइट ऑफ सर। पेंक्रियाज अलग एंटिटी में भी आता है, क्योंकि हेड ऑफ पेंक्रियाज अबाउट मींस 5 to 6 सेंटीमीटर तक जाता है, तो 2 सेंटीमीटर भी है। और अगर ऐसा कोई पेरीएम्पुलरी का लॉन्ग केस में आए तो आप पेरीएम्पुलरी भी बना सकते हैं, सेकंड डिफरेंशियल में आप हेड ऑफ पेंक्रियाज का ट्यूमर भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट सर। इंटरमिटेंट ड्यू टू शेडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है ना, कि वहाँ पे जो शेड ऑफ हो रहा है ड्यू टू उसकी वजह से उसमें इंटरमिटेंट होता है Ampulla, periampullary के। actually, the ampulla has the means terminal branches blood supply and arterial blood supply होता है। तो with क्या होता है कि when the tumor grows, there is scanty blood at the tip of the growth,
So what happens with passage of time? There is a necrosis of the most distal portion of the growth, which slough off, and which is the reason why there is a melena in ampullary carcinoma. And when this growth is slough, there is also relieved of jaundice, as well as patient will have bleeding too, क्योंकि ट्यूमर से लफ ऑफ होगा तो उस जगह से ब्लीडिंग एपिसोड भी होगी, जो कि प्रेजेंट करेगी एज अ मेलिना। एंड और जो पहले ऑक्लूड किया हुआ था एम्पुला वाटर को, वो ऑक्लूजन भी खत्म होगी, इससे जॉन्डिस रिलीव होगी। तो दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट आप आंसर ऐसे देंगे, सही है। Right, sir. Okay, so can you repeat what is Charcot Triads and Raynaud pentate? Sir, Charcot triad is patient have a jaundice, right upper abdominal pain and fever. Right upper abdominal या upper quadrant? Hello. Right upper abdominal or right upper quadrant? Hello, is my voice clear to everyone? सर इसमें इंटरमिटेंट बोलेंगे ना, चारकोट ट्राइड में इंटरमिटेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, इंटरमिटेंट फीवर एंड जॉन्डिस। नो, फीवर हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स होता है इसमें, सही है। और जॉन्डिस जिस वक्त है तो वो इंटरमिटेंट नहीं होगी, आप उसको जॉन्डिस ही बोलेंगे, और विथ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, सही है। और फिर रेनॉल्ड पेंटेड में कौन से मजीद एड ऑन होंगे सिम्टम्स? hypotension and mental status changes. Very right. Doctor, can you please introduce yourself? Yes, sir. I am Dr. Mohsen Ali from Nawabshah. Okay, Dr. Mohsen, you are very right. Hypotension and altered sensorium, which may be stupor, any mental, yani CNS symptom. Okay. Yes, sir. And how will you manage this patient? First, sir, we do most of them make the patient NPO, IV fluids and IV antibiotics, and then we will do the investigation. Like if we have done the MRCP, then we will go for first ERCP. You will straightforward go for ERCP after IV fluids and antibiotics. No, sir. First, we will stabilize the patient. As I said, first we will make the patient NPO. What IV are the four major components of obstructive jaundice to stabilize the patient? Yes, sir. Can you please name those one-liner answer? Please repeat the question, sir. What are the four major components in stabilizing or optimizing obstructive jaundice patient? देखो एग्जाम में जब भी obstructive jaundice का पेशेंट आएगा, वो आपको 4 से 5 लाइनें लाजमी बोलनी है, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि मैं उसको फ्लूइड दूंगा, दाखिल करूंगा और ये करूंगा। आप एक प्रॉपर वन लाइनर आंसर देंगे। आपने ये सही कहा, आफ्टर एडमिशन ऑफ द पेशेंट्स एंड आई विल एनपीओ द पेशेंट, देन आई विल डू करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, सही है। Yes, yes, sir. और कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, जिसमें आपका आ गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा करेक्शन ऑफ कोगुलोपैथी, ठीक है। Yes, sir. और तो फिर आपका आएगा करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड देन आप बोलोगे कि बिलियरी डीकम्प्रेशन, सही है। Okay, sir. So these lines will save you in any obstructive jaundice, क्योंकि एग्जामिनर आप बोलते हो ना सर, आई विल ऑप्टिमाइज माय पेशेंट एंड देन विल प्रोसीड फॉर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो और इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे नहीं बोलो मैं ईआरसीपी कराऊंगा या
आप बोलो, टू सपोर्ट माय डायग्नोसिस आई विल डू द अल्ट्रासाउंड एब्डामिन टू कंफर्म माय क्लिनिकल फाइंडिंग्स, या एज अ एक्सटेंशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन आई विल go for ultrasound. And in ultrasound I will see the organ of origin, intrahepatic biliary channels, extrahepatic biliary channels, gallstones, comment on gallbladder, and any other pathology abdominal. ठीक है. And still if there is a dilemma, then I will proceed for MRC. MRCP. ठीक है ना. Yes, sir. And confirm the diagnosis. Why MRCP? Because it is non-invasive. Or otherwise you can also go for upfront ERCP because it is diagnostic as well as therapeutic. So ERCP with stone extraction and stunting if there is need of stunting. And yes, sphincterotomy. Most of the times smaller stones are relieved with sphincterotomy alone. ठीक है. स्फिंक्टरोटमी की स्टोन एक्सट्रैक्शन कर ली, उसमें फिर हम कुछ एंडोस्कोपिस्ट रखते हैं स्टंट, कुछ नहीं रखते. ठीक है. Oh. ओके. सो what are the alternatives if ERCP fails, Dr. Saab? Sir, if ERCP fails, then we will either do laparoscopic exploration of the CBD first. And if it's still during laparoscopic exploration it is still failed, then we will go open exploration of the CBD. ठीक है. पहले तो मुझे आंसर ये दें, what will you do if there is a gallstone as well as CBD stone at the same time? How will you manage this patient? Sir, it depends on that. If we have found the gallstone or CBD stone at the same time, it means during the surgery, or we have found after the surgery. So management depends on that thing, sir. If Okay. CBD stone, if the cholelithas are we have seen during perioperatively, then first we will do along with the cholecystectomy, we will do choledochotomy. Dr. Mohsin, your voice has disappeared. Can anybody else comment? Hello, sir, my voice is coming, sir. Yes, now you are audible. Sir, I am saying that if the cholelithas and cholecystectomy are both are present. Yes, देखो, perioperatively answer is very simple. If the surgeon is experienced, then he will perform both at the same time. Means laparoscopic cholecystectomy with choledochotomy. Okay. Yes. And if the surgeon is inexperienced, then he will go for a cholecystectomy and refer the patient for ERCP. ठीक है. तो ये है मैनर. और अगर प्री ऑपरेटिवली आपको मिला है, देन आप ERCP कराओगे एंड देन यू विल प्रोसीड फॉर कोलिसिस्टेक्टोमी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लॉन्ग में, शॉर्ट में, टॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो माय प्रीवियस क्वेश्चन वाज कि अगर आपको ERCP फेल हो गई है तो फिर आप कैसे प्रोसीड करोगे? Sir, I suggest we will go for laparoscopic exploration of the CBD. ठीक है. और एनी अदर? पीटीसी नहीं है? सॉरी, पीटीसी की तरफ जाएंगे इसमें, लेकिन वो अगर प्रॉक्सिमल हो तो. देखो, अगर स्टोन बड़ा हो तो हमारे पास रिसेंट एडवांस में मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी भी ऑप्शन है. ठीक है. ESWS के जरिए आप स्टोन को स्मॉल पीसीज में करेंगे एंड देन यू विल एक्सट्रैक्ट द स्टोन एंड प्लेस स्टंटिंग.
दिस इज अगेन ऑप्शन, ठीक है ना। और अगर ईआरसीपी फेल हो रही है, देन यू विल, अगर ओपन है तो यू विल रिमूव द स्टोन, प्लेस द टी ट्यूब, एंड इफ देर इज नीड फॉर स्फिंक्ट्रोटमी, देन द लास्ट ऑप्शन इज ट्रांसड्यूडिनल स्फिंक्ट्रोटमी। ये क्वेश्चन मुझसे भी इवन इन माय एग्जाम एग्जामिनर ने पूछा था। तो ओपन में कोई और ऑप्शन है, तो आंसर वाज ट्रांसड्यूडिनल स्फिंक्ट्रोटमी। ठीक है, ये भी एक लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईआरसीपी? सर डॉक्टर मोहसिन आप बताएं। yes sir, mostly we have seen like the pancreatitis, and there can be also देखो, because मोस्टली वी हैव सीन नहीं बताना, आपने टू द पॉइंट आंसर देना है। मेरा सवाल है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईआरसीपी, यू जस्ट आंसर पेंक्रेटाइटिस, ब्लीडिंग, परफोरेशन, कोलिंजाइटिस, एलर्जी टू द कंट्रास्ट। बी सिंपल, बी टू द पॉइंट। सर हमारे okay वार्ड में ये होता है, वहाँ ये होता है, ऐसे आंसर नहीं देने, ठीक है। जैसे डॉक्टर अब्दुल रब साहब ने कहा था, यू विल कंसीडर दैट यू आर इन द बेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल, यू आर इन द बेस्ट सेटिंग, एंड यू विल आंसर लाइक दैट। ठीक है। okay sir. ओके डॉक्टर मोहसिन, देर इज अ पिक्चर, आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़िएगा, जस्ट फोकस ऑन द इमेज, व्हाट दिस इमेज इज। सर सर वैसे तो मतलब आई हैव नॉट, मैंने तो पूरी कोशिश की ना देखो, मगर इट्स इट्स क्लियर सर, इट्स एमआरसीपी, मगर इट्स ओके showing that there is filling defect, and there is also sir the radio opaque shadows also, ओके, and there's also dilated the biliary tract इसको along with visualization of the हाँ, gallbladder. इंट्रा हेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी डायलेटेशन, एंड आपने Yes. कहा फिलिंग डिफेक्ट, क्या एक ही फिलिंग डिफेक्ट है इसमें? No sir, there are two filling defects. टू फिलिंग डिफेक्ट्स, वेरी राइट, एक एरो पे है, एक उसके ऊपर नजर आ रहा है। Yes sir. ठीक है, तो ये पहचानना है एमआरसीपी, इसमें कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, जेट ब्लैक है, और इस तरीके से आप एग्जाम में भी पहचान सकते हैं। ठीक है। Okay sir. ये मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर है, इसमें ये देखें यहाँ पे टेपरिंग हो रही है ऊपर, तो ये भी आप एक बार देख लें। यानी दिस कुड बी द ट्यूमर एट द जस्ट बिलो द confluence, and there is distal CBD dilatation as well as above the confluence there is dilatation, और यहाँ पे ये कोलेंजोकार्सिनोमा मोस्ट प्रोबेबली, आप एक कोलेंजोकार्सिनोमा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर या मेलिग्नेंट ग्रोथ। ठीक है। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं हाइड कर लूं, वरना आप वो पढ़ लेते हैं ना।
Okay, can you please comment on this radiograph? So this is also looking like a pathological image showing that there is the hepatic, same way the hepatic ducts are dilated, and there is also some catheter which is inserted through which I think some dye is injected, which is coming into the duodenum. Very right. You have perfectly jejunum नहीं duodenum. सही Yes, है sir, तो I said. हाँ yes. And what this image is यानी ये किस चीज की इमेज है? I think, sir, it is the image of PTC. वेरी राइट. जब भी आप देखें कोई कैथेटर आ रहा है और मोस्टली ये राइट लोअर कोस्टल कार्टिलेज वाले रीजन से इसको इंसर्ट करते हैं, मगर देर आर आल्सो अदर साइट्स. कुछ सर्जन मिड लाइन से भी एंडोस्कोपिक रेडियोलॉजिस्ट जा रहे होते हैं. तो मगर जो प्रॉपर है वो यही है कि जैसे एक तो इसका क्योंकि लॉन्ग केस में भी कभी आ जाता है, इसका जो ड्रेन होगा वो पिगटेल की तरह होगा. मीन्स पिगटेल ही रखते हैं और वो उसका जैसे टी ट्यूब है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में या लेटरल वाला ऑफ एब्डामिन से आ रहा होगा और ये कोस्टल मार्जिन से आ रहा होगा. ठीक है. और वो लेटेक्स का कैथेटर होगा, फुली या कैथेटर. और इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको पिगटेल ड्रेन जो स्काई ब्लू कलर का है, जो मैंने ये ओपेक शेडो लगाया है, यही कलर होता है. तो इस तरीके से आप पहचानेंगे इस पेशेंट का पीटी बीडी ड्रेन है. ये तो पीटीसी है. वैसे अगर कोई क्लिनिकल पेशेंट आ जाता है तो वो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये ड्रेन कौन सा लगा है, तो आप फिर बोलेंगे कि परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेन. ठीक है. तो what is percutaneous transhepatic cholangiography? This picture is taken from Schwartz manual, latest edition. P PTC is an interventional radiology technique to visualize the bile duct and hepatic duct system. It is often performed in situation where ERCP is unsuccessful. In addition to being diagnostic, this procedure is also therapeutic and can be used to relieve obstruction using a stent or to decompress blocked biliary ducts with insertion of a drain. जैसे कोलिंजोकार्सिनोमा का केस आ गया या डिस्टल कोलिंजोकार्सिनोमा आ गया, उसमें ईआरसीपी आप एडवांस नहीं कर सकते ऊपर. तो जब आपने प्रॉक्सिमल बिलियरी ट्रैक्ट को डाइवर्जन देनी होती है या डीकम्प्रेशन, तो फिर पीटीसी की इंडिकेशन आ जाती है. या जैसे कॉमन हेपेटिक डक्ट पे क्लिप लग गया स्ट्रासबर्ग ई में जैसे हमारा था, तो उसमें से कोई इंजरी हो गई एडवांस वाली, तो फिर भी हम पीटीसी की इंडिकेशन और पीटीबीडी ड्रेन रखेंगे. सही है. दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम बेली एंड लव. सर इसमें ड्रेन का रखिए, एक दफा दिखा दे. ये कैथेटर है ना, दिस कैथेटर इज लाइक गाइड वायर. तो इस कैथेटर के कौन सा ऊपर वाला? जैसे डॉक्टर अब्दुल रब ने वो बूजी वाला कॉन्सेप्ट ईटीटी में नहीं बताया था, तो हाँ, तो फिर इसके ऊपर ही पिगटेल एडवांस करेंगे, वो सीधा इधर आ जाएगा. सही है. ये टेक्निक में बता देता हूं मैं. द प्रोसीजर इज कंडक्टेड बाय द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. लोकल एनेस्थेटिक विल बी इंजेक्टेड एट द ड्रेन साइट and the skin will be prepped antiseptic solution and draped under ultrasound guidance. A needle will be inserted through the skin at the right upper abdomen into a peripheral hepatic duct. Contrast will then be injected into the duct and an X-ray is taken to visualize the biliary tree to evaluate any obstructions, anatomical variations or pathology. Following the X-ray with contrast, you may be left with a drain tube
to drain bile from biliary system, providing ongoing decompression of the bile duct. ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले अच्छा डॉक्टर साहब कैसे करते हैं ये, तो आप हमेशा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का नाम बताएंगे, फिर आप स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, ये अगेन बेली लव क्या कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द इन्वेसिव टेक्निक इन विच द bile ducts are cannulated percutaneously. The main indication is to drain intrahepatic ducts when structure cannot be accessed through ERCP. The procedure is undertaken after confirming normal coagulation parameter. Antibiotics should be given prior to the procedure under fluoroscopic or sonographic control. सिलेंडर ये नीडल का पूछ सकते हैं। चीबा नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड percutaneously into the liver substance. Successful entry into the bile duct is confirmed by contrast injection or aspiration of bile, or water soluble contrast medium is injected to visualize the biliary system, and images are taken to demonstrate stricture or obstruction. और पिक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है। और बाकी आगे वो लिख रहा है कि इससे एक्सटर्नल इंटरनल बिलियरी ड्रेनेज हो जाती है, और आप इंडवेलिंग स्टंट भी डाल सकते हो, ड्रेन भी पुट कर सकते हो। और इसमें भी वही टेक्निक कर सकते हैं जो बुरिन्स टेक्निक थी ना, 4 to 6 वीक्स के बाद हम दोबारा कोलिडोस्कोप डाल रहे थे। ये लाइन पर्पल हाईलाइट में देखें, द ड्रेनेज कैथेटर कैन बी लेफ्ट इन सिटू फॉर अ नंबर ऑफ डेज and the tract dilated sufficiently for the introduction of a fine flexible choledocoscope to diagnose stricture, take biopsies and remove stones. ठीक है, ये इंडिकेशन है बाइल डक्ट ट्यूमर, पेंक्रेटिक ट्यूमर, क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस, बिलियरी स्ट्रिक्चर, बिलियरी लीक। तो इनमें से ऑलमोस्ट 3-4 मैंने आपको बता दिए हैं, और डायग्नोस्टिक थेरापेटिक दोनों रोल हैं इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेशन से पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं, फिर हम 1st of October our new talks session will be started, in which we will cover 10 mock test, and if anybody has not taken this session, he is most welcome, and I will share the link today in the group, so be in the touch of the group। और इतना कोई ये एक्सपेंस नहीं है, आपको 15,000 कुछ ज्यादा लगते हैं, मगर आप देखें लाहौर वाले जो एग्जामिनर है वो सिर्फ एक एक मॉक टेस्ट के 10,000 मिनिमम 8,000 ले रहे होते हैं, और हम आपको इसमें 10 डिफरेंट मॉक टेस्ट करा रहे हैं। ये नहीं है कि हमने एक लेक्चर पढ़ा लिया इमेजिंग का, ऐसे खाना पूरी कर दी, या आपको हमने कुछ 2-3 ट्यूमर पढ़ा दिए, ऐसे नहीं है। वी हैव कंसोलिडेटेड structure in which we are totally focused on the real exam simulated stations। तो किसी को कोई भी पूछनी हो डिटेल, एडमिन में डॉक्टर अब्दुल रब साहब हैं, मैं हूं, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस इफ यू हैव एनी क्वेरी। मीन्स वी हैव सेवरल पैकेजेस, जिसमें हमारा लॉन्ग शॉर्ट इंटरएक्टिव सेशन है, और वो भी मैं कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं। अगर किसी को भी यानी फास्ट पेस पढ़ना है, तो उसमें 10 से 15 जो मेन लॉन्ग केस है उसको कैसे कवर किया जाए, वो सारा A to Z आपको यानी इसी सेशन में कवर होगा। जैसे रात को आपने 2 से 3 घंटे का लेक्चर ले लिया, सुबह वही मरीज देखा, तो आपका यानी वो डबल ट्रिपल चेक हो जाएगा, और पक्का भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बैक टू बैक अगर आपने वो 8-10 जो बैक टू बैक केस आ रहे होते हैं उसकी प्रैक्टिस की, इंशाल्लाह यू विल क्लियर योर एग्जाम स्मूथली।